بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 13 کا آغاز کیا ہوا ہے جس کا عنوان ہے چوک میں لگی بتیاں۔ کل ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی تھی، آج ہم اس کی مشق کریں۔ مشق کا جو پہلا سوال ہے آپ کا، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ چوک وہ جگہ جہاں سے 4 راستے نکلتے ہوں۔ پابندی کرنا، فرما برداری، ماننا، اطاعت کرنا۔ کل ہم نے اس کی خالی جگہ بھی کر لی تھی اور اس کی مشق کا جو سوال نمبر 1 تھا وہ بھی کر لیا ہے۔ آج ہم نے اس کا سوال نمبر 2 کرنا ہے بے۔ سبز بتی کے جلنے پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اس کا سبز بتی کے جلنے پر آگے چلنا چاہیے۔ پھر سوال ہے آپ کا ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے اس کا تاکہ ہم حادثوں سے بچ سکیں۔ جی، ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ ٹریفک کے اشاروں کی پابندی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم حادثات سے بچ سکیں۔ آج کے لیے آپ نے بس اتنا ہی یاد کرنا ہے، یہ 2 سوال اس کو لکھنا بھی ہے اور اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جماعت دوم، پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے سبق نمبر 18 کا آغاز کیا ہوا ہے جس کا عنوان ہے دوستی ہو تو ایسی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی ہے اور اس کے الفاظ معنی بھی کر لیے ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 2 ہے آج، درست جواب پر ٹک کا اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں۔ مرغے کے پاس اپنا گھر تھا، نہیں، کراس۔ بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ نہ دی، ٹک۔ مرغے کو استبل میں رہنے کی جگہ مل گئی، کراس۔ استبل کا میننگ پتہ ہے سب کو؟ گھوڑے کے رہنے کی جگہ۔ مرغے نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گھر بنایا، ٹک۔ مرغا اور خرگوش پڑوسی بن گئے، ٹک۔ مشق کا سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، مرغا کیوں پریشان تھا؟ مرغا اس لیے پریشان تھا کیونکہ سردی بڑھ گئی تھی اور اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ بے ہے، خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا کن کن کے پاس مدد کے لیے گیا؟ تو ہم نے کہانی میں پڑھا ہے، خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا بکری اور گھوڑے کے پاس مدد کے لیے گیا۔ جی بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ نے اس کو بک پہ بھی نوٹ کرنا ہے اور کاپیز پہ بھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جماعت سوم، پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق نمبر 19 کا آغاز کیا ہوا ہے جس کا عنوان ہے دل دل پاکستان۔ ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی ہے اور الفاظ معنی بھی کر لیے ہیں۔ آج ہم نیکسٹ مشق کریں گے۔ آپ کی مشق کا سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ لاہور کو کالجوں اور ڈیش کا شہر کہا جاتا ہے، بغداد۔ صوبہ سندھ کا دارالحکومت ڈیش ہے، کراچی۔ گلگت بلتستان کا مشہور کھیل ڈیش ہے، پولو۔ پاکستان کے لوگ بہت جفا کش اور ڈیش ہیں، ملنسار۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دن ڈیش میں گزارے، زیارت۔ سوال نمبر 3 ہے مشق کا، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، پھولوں کی وادی کہا جاتا ہے، لاہور کو، کراچی کو، پشاور کو۔ تو اس کا جواب ہے پشاور کو۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی، لاہور، کوئٹہ۔ تو اس کا جواب ہے کراچی۔ پھلوں کا شہر کہا جاتا ہے، کوئٹہ کو، پشاور کو، گلگت بلتستان کو۔ تو جواب ہے اس کا کوئٹہ کو۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، میرپور، راولکوٹ، مظفر آباد۔ تو جواب ہے اس کا مظفر آباد۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ۔ تو اس کا جواب ہے صوبہ بلوچستان۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کی مشق کا، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ آج ہم نے صرف اس کا پہلا سوال کرنا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو الف۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے کل سبق نمبر 19 کا آغاز کیا تھا، رائے کا احترام۔ رائے بولتے ہیں مشورے کو۔ ہم نے اس کی ہاف ریڈنگ کی تھی، آج ہم اس کی نیکسٹ ہاف ریڈنگ کریں۔
जी बच्चों, हमने कल यहाँ तक रीडिंग पढ़ ली थी, आज यहाँ से करेंगे। अम्मी जान, शाबाश बेटा, आज आप जिसको मौजू समझते हैं, मौजू मतलब मुनासिब समझते हैं, उसी को वोट दें और वो तलबा को भी उसकी अच्छाई की वजह से उसे वोट देने के लिए आमादा करें, यानी तैयार करें, राजी करें। लेकिन याद रखें कि हर मामले में हर शख्स की राय एक जैसी नहीं होती। आपके बेहतरीन दोस्त भी बहुत से मामलात में आपकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है। अगर किसी की राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो तो हमें उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी राय को तस्लीम करना चाहिए। असूल ये है कि आप अपनी राय दें, लेकिन कसरत राय से जो फैसला हो, कसरत राय यानी ज्यादा लोगों की राय, उसे खुश दिली से कबूल करें। इसी को जमहूरी रवैया कहते हैं। यानी कि इसमें वो ये बता रहे हैं कि जब हम सबसे मशवरे मांग रहे होते हैं, राय मांग रहे होते हैं, तो अगर हमारे एक कोई खिलाफ भी हो, यानी कि हमारी राय के इख्तिलाफ भी हो सकते हैं कुछ दोस्त, तो हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस चीज के ऊपर ज्यादा लोगों का वोट हो, हमें उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अदनान, अम्मी जान, ये तो बहुत अच्छी आदत है। अम्मी जान, जी बेटा, इस अच्छी आदत को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आप लोगों को भी ये अच्छी आदत अभी से अपनानी चाहिए। आपके उस्ताद साहिब क्लास का इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग वो बातें सीख लें जो आने वाली जिंदगी में आपके काम आएंगी। अदनान, मासूमियत से, अम्मी जान, कौन सी बातें? अम्मी जान, हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया इस मुल्क को कहते हैं जहां अवाम की अक्सरियत के मशवरे से हुकूमत बनाई जाती है, अवाम से वोट की सूरत में राय ली जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है। जैसे कल आप क्लास के मॉनिटर के इंतखाब के लिए वोट दे रहे हैं। अदनान, अम्मी जान, इसका मतलब ये है कि वोट की बहुत अहमियत है। अम्मी जान, जी बेटा, वोट का इस्तेमाल हर फर्द को करना चाहिए और हमेशा बेहतरीन नुमाइंदे को वोट देना चाहिए। अदनान पुरजोश अंदाज, मैं इन बातों पर खुद भी अमल करूंगा और स्कूल में सारे दोस्तों को भी इन बातों की तरगीब दूंगा। जी बेटा, आज हमारी यहाँ पे रीडिंग मुकम्मल हो गई है। हमने इस रीडिंग के अंदर ये सीखा है कि नुमाइंदे या लीडर का इंतखाब सबकी राय और मशवरे से होना चाहिए। नुमाइंदगी के लिए अहल और दयानतदार फर्द के हक में ही अपनी राय देनी चाहिए। दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए। अक्सरियत की राय को खुश दिली से कबूल करना क्या कहलाता है? जमहूरी रवैया कहलाता है। आज हम इसके साथ करेंगे इनके अल्फाज मायने। मश्क, जिसका पहला सवाल है, इन अल्फाज के मायने समझे। अल्फाज मायने: मौजू, मुनासिब, ठीक, दुरुस्त। जमहूर, आदमियों का बड़ा गिरोह, अवाम। रवैया, तरीका। कसरत, ज्यादा होना। इलेक्शन, इंतखाब, वोट, राय। आपकी मश्क का सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। स्कूल में क्लास मॉनिटर का इलेक्शन था, बिल्कुल दुरुस्त। अदनान ने कहा, मैं राशिद को वोट नहीं दूंगा, क्रॉस। कसरत राय से जो फैसला हो उसे कबूल करना जरूरी नहीं, क्रॉस, बल्कि उसे कबूल करना जरूरी है। हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, टिक। वोट का इस्तेमाल हर शहरी को नहीं करना चाहिए, क्रॉस। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी झूठ का अंजाम। इसका सफ़ा नंबर है 71 यानी 71। एक था गडरिया, वो भेड़ बकरियां चराने के लिए किसी जंगल के करीब जाया करता था। एक दिन उसे शरारत सूझी। वो झूठ मूठ चलाने लगा कि शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देहाती यानी गांव में रहने वाले लाठियां कुल्हाड़ियां उठाकर इसकी मदद को पहुंचे। वहां तो कोई शेर ना था। गडरिया इन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मैंने तो मजाक किया था, मैं देखना चाहता था कि मेरी मदद के लिए आते हो या नहीं। शरारती गडरिये ने एक दफा फिर शेर आया कहकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। इस मर्तबा भी देहाती इसकी मदद के लिए हाँफते कांपते वहां पहुंचे।
जब उन्हें मालूम हुआ कि गडरिये ने झूठ बोला है तो इससे नाराज हुए और आइंदा न आने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद हकीकत में शेर आ गया। गडरिया मदद के लिए पुकारता रहा मगर कोई ना आया। शेर ने तमाम भेड़ बकरियों को चीर-फाड़ डाला। गडरिये ने भागकर मुश्किल से जान बचाई। नतीजा, झूठे आदमी का एतबार जाता रहता है। जी बेटा, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी के एतबार को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर कोई हम पर एतबार करता है तो हमें उसे ना उम्मीद मायूस नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि वो जो लड़का था उसने 2 मरतबा गांव वालों के साथ झूठ बोला। वो गांव वाले तो बेचारे उसकी मदद के लिए आते रहे, लेकिन जब उसने बार बार झूठ बोला तो अक्सर हमारे जो झूठ होते हैं, जो हम मजाक कर रहे होते हैं, वो हकीकत में भी तब्दील हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने अल्फाज का चुनाव सोच कर करना चाहिए। जी, आज हमने ये कहानी करनी थी, आपने इसको लिखना भी है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपने इससे सबक भी जरूर लेना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अलिफ। आज हमने इसका आगाज करना है सबक नंबर 16 का, जिसका नाम है मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह, यानी मादरे मिल्लत, कौम की माँ। ये फातिमा जना का लक़ब था। हम इन अल्फाज को देखते हैं। सबसे पहले अजीम, बड़ी, मुफारकत, अलहदगी या जुदाई, इंसानियत, आदमियत, जद्दोजहद, कोशिश, तफवीज़, फैज़ पहुंचाना, शख्सियत, अहम लोग, वकालत, वकील का पेशा, मसरूफ, मशगूल को बोलते हैं यानी किसी काम में लगा हुआ, मुश्तरका, शरीक किया हुआ, आमरियत, शख्सी हुकूमत या अमीराना हुकूमत। अब मैं आपको इसकी रीडिंग के साथ मैं इसका आपको खुलासा बताऊंगी। आपने रीडिंग यहाँ से पढ़ लेनी है और ये कुछ जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके मायने लिखे हुए हैं इनके ऊपर, और आज जो खुलासा बताऊंगी मैं आपको वो पहला निस्फ बताऊंगी। जी बेटा, इस कहानी के अंदर, इस सबक के अंदर हमें ये बताया गया है कि मोहतरमा फातिमा जना कायद आज़म की सबसे छोटी बहन थी। आप कायद आज़म से 17 वर्ष छोटी थी। आप अभी 8 साल की ही थी कि वालिद साहिब वफात पा गए। वालिदा पहले ही फौत हो चुकी थी। यूं बहन भाइयों की तमाम जिम्मेदारियां कायद आज़म पर आ गई। कायद आज़म ने अपनी बहन को यानी फातिमा जना को मुंबई में बुला लिया। मोहतरमा फातिमा जना बचपन से ही ज़हीन थी। आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डेंटल सर्जन की तलीम हासिल की। डेंटल सर्जन बोलते हैं दांतों के डॉक्टर। आप अपना क्लिनिक खोलकर दुखी इंसानियत की खिदमत करने लगी। आपने जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमान खवातीन को सियासी मैदान में मुतहरिक किया। खवातीन मुस्लिम लीग की तमाम जिम्मेदारियां मोहतरमा फातिमा जना को दी गई। जी बेटा, इसके अंदर आज जितना मैंने आपको बताया है ये था हाफ खुलासा यानी आधा। आपने इसकी रीडिंग पढ़नी है। आपने पहले इसकी रीडिंग पढ़नी है, फिर आपने जो मैंने आपको खुलासा बताया है इसको सुन लेना है, फिर आपको इसकी रीडिंग की अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके साथ हमने करने हैं इसके 2 सवाल। देखते हैं हम 2 सवाल। पहला सवाल है आपका, मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुई? मोहतरमा फातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। मोहतरमा फातिमा जना के कितने बहन भाई थे? मोहतरमा फातिमा जना के 7 बहन भाई थे। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपने खुलासा भी सुन लेना है और ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे नोट करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, अल्फाज मायने भी याद करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने नए चैप्टर का आगाज करना है, सबक नंबर 18, शजरकारी और हमारे मौसम। शजरकारी बोलते हैं दरख्त लगाने को। सबसे पहले हम इनके ये अल्फाज देख लेते हैं और इनके मायने। बंदिश, बंद होना, महाल, नामुमकिन, मुज़िर, गैर मुफीद, हालिया, मौजूदा, मकीम, क़याम पज़ीर, मुतासिर, असरअंदाज, तय्युन, महदूद। अब मैं आपको इस सबक का खुलासा बताऊंगी। इस सबक में ये बताया गया है, स्कूल में शजरकारी मनाने का ऐलान किया गया। ऐलान सुनकर तमाम लड़कियां पुरजोश हो गई यानी बहुत खुश हो गई। हदिया शजरकारी के पहले दिन हर लड़की अपने साथ एक पौधा लाई। ऐसा लग रहा था जैसे इनके दरमियान पौधे लगाने का मुकाबला मुनक्किद हो। मिस फातिमा जमात में आई और बोली कि आपकी भरपूर तैयारी से बेहद खुशी महसूस हो रही है। हम ये पौधे बाहर खुले मैदान में लगाएंगे। सादिया ने मिस से सवाल किया, हफ्ता शजरकारी मनाने का मकसद क्या है? मिस फातिमा ने बताया कि दरख्तों के बेशुमार फायदे हैं,
जिसकी वजह से शजरकारी की जाती है। फर्नीचर, कागज बनाने के लिए दरख्तों की जरूरत पड़ती है। दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दरख्तों की कमी से फिजा आलूदा हो जाती है। आलूदा यानी खराब, लिहाजा हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फिजा को आलूदा कर रहा है। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक ने फिजाओं को आलूदा करने में अहम किरदार अदा किया है। सनती धुएं ने फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली आई है और जमीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। इन अचानक तब्दीलियों से फसलों, दरियाओं और झीलों पर शदीद असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से जरखीज इलाकों में कहत और खुश्क साली नजर आती है। इन तमाम मसाइल से छुटकारा पाने के लिए सनतों के धुएं में कमी लाना होगी। अगर हर शख्स एक पौधा लगाए तो हम जमीन और इन पर मुकीम जानदारों को मुस्तकबिल में मजीद तबाही से बचा सकते हैं। यानी कि इस सबक में वो ये हमें कह रहे हैं कि हम अगर हर शख्स एक पौधा लगाए तो इस जमीन पर रहने वाले लोगों को मुस्तकबिल में जो तबाही होगी, उनका नुकसान होगा, उससे हम उन्हें बचा सकते हैं। ये सुनकर बच्चे मैदान में आ गए और जोशो खरोश से पौधे लगाए। मिस फातिमा ने बच्चों से कहा कि सिर्फ पौधा लगाना ही काफी नहीं, बल्कि इनकी देखभाल करके इसे दरख्त बनाने में मदद देना भी जरूरी है। तमाम तलबा ने वादा किया कि वो इन पौधों की देखभाल करेंगे। जी बच्चों, ये था इसका खुलासा। जी बच्चों, आपने खुलासा सुना, आप रीडिंग भी पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर एक चीज सबक मिलेगा कि दरख्त जो है वो आबो हवा के लिए बहुत जरूरी है और दरख्त के जरिए ही हमारा माहौल और उसकी जो फजा है वो क्या रहती है, साफ रहती है। जी, अब हम इसके साथ इस पे करेंगे सवाल जवाब। हम देखते हैं उसके सवाल जवाब। पहला सवाल है, पहले जब हफ्ता शजरकारी मनाने की बात चली तो इस पर क्यों अमल ना हो सका? जवाब है इसका, कोरोना वायरस के सबब स्कूल एक अरसा तक बंद रहे। स्कूलों की बंदी से पहले हफ्ता शजरकारी मनाने की बात चली, लेकिन इस पर अमल होने से कबल ही वबा फूट पड़ी। दूसरा सवाल है इसका, दरख्त काटने के अमल में तेजी क्यों वाक़या हुई है? जवाब है इसका, बढ़ती आबादी के साथ साथ इंसान की रोजमर्रा जरूरियात में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में दरख्त काटने के अमल में तेजी वाक़या हुई है। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने सबक नंबर 19 इब्तिदाई तिबी इमदाद का आगाज किया हुआ है। कल हमारी रीडिंग इसकी मुकम्मल हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपने उसको अच्छे से रीड किया होगा, समझ भी आ गई होगी। आज हमने इसकी मशक करनी है। पहला सवाल है आपका, बच्चे दर्द से क्यों कराहने लगे? जवाब है इसका, बच्चे आपस में टकरा गए और शिद्दत दर्द की वजह से कराहने लगे। सवाल नंबर 2, कराहने का क्या मतलब है? जवाब, शिद्दत दर्द और तकलीफ की वजह से जो आवाज निकलती है उसे कराहना कहते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका, आसिम साहिब ने जो डब्बा मंगवाया उसे क्या कहते हैं? जवाब है इसका आसिम साहिब ने जो डब्बा मंगवाया उसे अंग्रेजी में फर्स्ट एड बॉक्स और उर्दू में इब्तिदाई तिबी इमदाद का डब्बा कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, फर्स्ट एड किसे कहते हैं? फर्स्ट एड वो मदद है जो किसी जख्मी को किसी हादसे या चोट लगने की सूरत में जख्मी को फौरी दी जाती है। इस इमदाद का मकसद तकलीफ की शिद्दत कम करना और जख्मी को खतरे से बचाना है। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपने इसको नोट करना है और अच्छे से याद भी करना है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।